Hello student, today we will read chapter number 4, that is about heat. Now all of you know very well we wear woolen clothes during the winter when it is cold outside. ठंड के समय में, ठंड के सीज़न में बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम वुलन कपड़े पहनते हैं. वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म. वुलन के कपड़े हमें गर्म रखते हैं. Now in winter we feel cold inside the house. If we come out in the sun we feel warm. यदि हम घर में भी रहते ठंड के समय तब भी हमें कोल्ड फील होता है, और जैसे हम बाहर धूप में जाते हैं तो हमें गर्म फील होता है. इन समर वी फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. और गर्मी के समय घर के अंदर भी हमें गर्मी फील होती है. In apart from the different type of weather season, in our daily day-to-day life we come across a number of objects. हमारे प्रतिदिन जीवन में हम ऐसे वस्तुओं से संपर्क में आते हैं कि उनमें से कुछ वस्तुएं गर्म होती है और कुछ वस्तुएं ठंडी होती है. तो some of them are hot and some of them are cold. Tea is hot, ice cream is cold. Okay, now this hotness or coldness is measured by temperature. This hotness or coldness is measured by temperature, and this temperature is measured by a special device. That device is known as the thermometer. With the help of this device we can measure the temperature, and by knowing the temperature we can understand the weather is hot or cold, object is hot or cold. By measuring the temperature by thermometer we can know that the given object is hot or cold, or weather is hot or cold. Okay, we can measure the exactly by using the thermometer. Now thermometer are of two types: clinical thermometer and laboratory thermometer. There are two types of thermometer: clinical thermometer and laboratory thermometer. So which is called clinical thermometer? The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. जिस थर्मामीटर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है उस थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द क्लिनिकल थर्मामीटर, देन वी विल डिस्कस अबाउट द लेबोरेटरिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. एक कांच की लंबी नली होती है. इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड. और एक एंड में बल्ब होता है. बल्ब मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं, एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है जिसमें मरकरी भरी हुई होती है. इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड. दिस बल्ब कंटेन मरकरी. इस बल्ब में मरकरी फिल होती है. मरकरी मीन्स पारा. आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन. और इस बल्ब के बाहर हमें एक पतली धागा नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ये कांच की पतली नली होती है जिसमें भी मरकरी भरी हुई होती है. मतलब इसमें से मरकरी, बल्ब में से मरकरी जब टेम्परेचर पाकर, हीट पाकर एक्सपांड होती है, फैलती है, तो इस कांच की नली में ऊपर चढ़ जाती है. इस कांच की नली में ऊपर चढ़ जाती है. इस फिगर नंबर 4.2 में दिखाया गया है. The thermometer has the long tube and small bulb in which mercury is filled, and it also has a thin thread like structure. It is a very thin tube. It looks like a thread, but it is a thin tube through which the after expanding mercury can be flow through it. Now this bulb contains the mercury. Outside the bulb a small shining thread of mercury can be seen.
If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. यदि आपको क्लियरली ये नली दिखाई नहीं देती है तो आप थर्मामीटर को रोटेट करके भी उसे आसानी से देखने की कोशिश कर सकते हो. You will also find a scale on the thermometer. थर्मामीटर में दूसरी और स्केल बनी हुई होती है, उसे आप रोटेट करके देख सकते हो. द स्केल वी यूज द सेल्सियस स्केल indicate by degree Celsius. The scale that is used in clinical thermometer to measure the temperature is the degree Celsius. Clinical thermometer reads the temperature range from 35 degree to 40 degree Celsius. 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम टेम्परेचर को माप सकते हैं. इसका रेंज बहुत अधिक नहीं होता है क्योंकि हमें सिर्फ बॉडी टेम्परेचर ही मापना होता है. And the human body temperature, the normal temperature of human body is 37 degree Celsius. 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल व्यक्ति का होता है और उसके नीचे या उससे ऊपर फिर एबनॉर्मल कंडीशन होती है. तो इसलिए 35 से 42 तक ही हम माप सकते हैं. इसके ना तो नीचे बॉडी टेम्परेचर जाता है ना ही इस टेम्परेचर के ऊपर बॉडी टेम्परेचर जाता है. नाउ रीडिंग ए थर्मामीटर. हाउ वी विल रीड द थर्मामीटर? देयर इज सम प्रोसीजर बिफोर वी रीड और यूज द थर्मामीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड वॉश द थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़. थर्मामीटर यूज़ करने के पहले और बाद में इसे अच्छे से धो लेना चाहिए. उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से भी धो लेना चाहिए ताकि पर्सन से पर्सन जब हम यूज़ करें तो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में न फैले. उसके बाद में इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35. फिर हमें ये भी इंश्योर कर लेना चाहिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है वो पारा लेवल, मर्करी लेवल जो है क्लिनिकल थर्मामीटर का वो नीचे होना चाहिए. अगर रुका हुआ है तो हम उसे जर्क देकर 2-4 जर्क देकर उस मर्करी लेवल को नीचे ला सकते हैं और लाना चाहिए मेज़र करने से पहले. तो इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. तो किसी की बॉडी टेम्परेचर मापने के पहले हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि थर्मामीटर में मर्करी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो. उसके बाद में जब हम थर्मामीटर को रखते हैं तो उसकी जो लेवल है वो ठीक से नोट कर लेना चाहिए. रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रेट. फिर मर्करी का जो लेवल है वो आँखों को सीधा रखकर, आँखों के लेवल से थर्मामीटर के लेवल में सीधा रखकर हमें मेज़र करना चाहिए. हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर. थर्मामीटर को बहुत केयर के साथ में हैंडल करना चाहिए, बहुत सावधानीपूर्वक हैंडल करना चाहिए. इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक. यदि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है तो ये टूट जाता है. डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट. रीडिंग लेते समय बल्ब को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी उसमें आ जाएगा. तो दीज आर सम प्रिकॉशंस विच वी हैव टू फॉलो बिफोर वी टेक द रीडिंग ऑफ एनी बॉडी of person. Now there are some divisions made in the scale between the two bigger marker. Now these divisions, there are equal 5 divisions are made before two big marks and one small division has the value equal to 1/5 means 0.2 डिग्री सेल्सियस. एक डिवीज़न का एक लाइन, डिवीज़न मीन्स एक लाइन
की जो वैल्यू होती है क्लिनिकल थर्मामीटर में वो 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह से हम बॉडी टेम्परेचर कुछ प्रिकॉशन को लेते हुए मेज़र कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 4.2, जिसे आप अपने घर पर भी कर सकते हो। यहाँ पर पर्सन का नाम लिखना है, फर्स्ट कॉलम में पर्सन के नाम लिखना है, वो आपके घर के सदस्य भी हो सकते हैं, और सेकंड कॉलम में उनका बॉडी टेम्परेचर नोट करके लिखना है। नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मामीटर का जो डिज़ाइन है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को नोट करने के लिए ही बनाया गया है, बिकॉज इट हैज़ अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 42 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय दिस थर्मामीटर। नाउ सेकंड इज लेबोरेटरी थर्मामीटर. Laboratory thermometer is just like the clinical thermometer. It has a look just like a clinical thermometer. It has same structure. It also has bulb at one end, and it is also made up by long tube of glass. It also has thin tubular structure inside the thermometer. Only difference is that it is somewhat bigger than the clinical thermometer, and clinical thermometer has a kink near the bulb, and laboratory thermometer do not has the kink near the bulb. Kink मतलब एक बेंड स्ट्रक्चर होती है। अगर आप थर्मामीटर को माइन्यूटली ऑब्जर्व करो तो आपको वो किंक दिखाई देगा। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। रेंज इज ऑल्सो वास्ट इन क्लिनिकल थर्मामीटर। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसका रेंज अधिक होता है, ये -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को माप सकते हैं। दिस थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को छोड़कर बाकी वस्तु का टेम्परेचर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के द्वारा माप सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है पानी के टेम्परेचर को मापते हुए। To note down the temperature of water, you have to take some water in beaker, then keep the laboratory thermometer in straight condition. इसे सीधा रखा जाता है, and then you can measure the temperature of water or of any other liquid. Here also some precautions are there which you have to follow while recording the temperature by using the laboratory thermometer. So you should be kept upright, not tilted. इसे जब भी आपको टेम्परेचर मेज़र करना है किसी लिक्विड का, किसी सब्सटेंस का, तो तब आपको वो थर्मामीटर सीधा रखना है। लेबोरेटरी थर्मामीटर सीधा रखा जाता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है उसे हम तिरछा रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी रख सकते हैं, टंग के नीचे हम उसे रखते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। जबकि लेबोरेटिकल थर्मामीटर को सीधा ही रखा जाता है। And bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. और टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जिस वस्तु का हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं वो वस्तु से नीचे का हिस्सा पूरा घिरा हुआ होना चाहिए, मतलब थर्मामीटर पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ होना चाहिए।
द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और ये जो बल्ब है ये कंटेनर के ना तो बॉटम से ना तो साइड वॉल से टच होनी चाहिए, अन्यथा ये गलत रीडिंग बताएगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको फॉलो करके हम लेबोरेटरी में टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। इन नेक्स्ट टॉपिक we will discuss about the transfer of heat। एंड एक और जानकारी आपको बता दूं जो यहाँ पर दिया हुआ है कि मरकरी जो है वो बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है। मरकरी इज़ ए वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज़ वेरी डेंजरस टू आवर बॉडी। सो एट प्रेजेंट टाइम वी यूज द electronical digital thermometer. Mercury is not used in digital thermometer and it is easy and convenient to measure the temperature, so that today digital thermometer is very popular among the people. And in next we will discuss about the transfer of heat. Till then, bye.